This call is now being recorded. Okay, starting. Assalamu alaikum and good morning, everyone. Hope you all are well. Um, Walaikum Assalam, sir. so let us start the session by starting the new chapter, that is transport layer. As you can see, according to the Mumbai University syllabus, what is there in our syllabus copy, what we are having. So just in the last session only, we have tried to complete the session, that is network layer. Okay, so the chapter that is network layer. Okay, actually it took more time. It took more time because it was having more weightage. As you can see, for 14 marks it is. Okay, so according to this weightage, you can consider the chapters. Okay, first of all, the first chapter was of only 6 hours. This is the load. Okay, this is not the weightage. Weightage for how much marks, for how many questions will be from this particular chapter. So it is not like that. So this is the number of hours required to complete this chapter. So this is 6 hours. So basically, it requires less time. Okay. Then again, second chapter is also 6 hours. The third chapter, mainly you can focus on the data link layer, that is of 10 marks. Then the network layer, which we have recently completed, is of 14 marks. And then we have two chapters remaining, as you can see on the screen, that the transport layer of 10 marks. Sorry, 10 hours, maybe marks बोल रहा हूँ. So 10 hours, and this is 6 hours. Okay, so basically इतना time लगता नहीं है. These two chapters are quite simple, and the main focus on the in this particular chapter is the main point of focus for this chapter is TCP and UDP, because you know that as far as the transport layer is concerned, as far as the transport layer is concerned, we have two main giant peoples. Okay, the one is TCPs, the second is UDP, because both are the transport layer protocol. Okay, but we have few more things also, like what are the different services which are being provided by the transport layer, and what are the different thing which are apart from the apart from other layer, what is the different in in this particular transport layer. Okay, सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग अबाउट इट. ओके, सो यहाँ पर जो सिलेबस है तो उससे आपको समझेगा नहीं, बट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट द मेन फोकस इज ऑन TCP एंड UDP. Let us just read the thing what they have written: transport service primitives, Berkeley socket, connection management, handshake, UDP, TCP state transition, all that. तो ठीक है, चलो. First of all we'll start with the services, and then we'll move to the TCP, then UDP and all that. ठीक है, तो इसके अंदर जो आप मेन फोकस करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकते, बिकॉज वी हैव टू जंप टू द लास्ट चैप्टर ऑल्सो, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, एंड वी डोंट हैव मच टाइम. ओके, we have to complete the last chapter also, that is application layer. In this particular last chapter, you can see you are having only protocol, which all the protocol works on the application layer. Okay, so like DNS, then HTTP, SMTP, Telnet, FTP, DHCP, all these protocols are working on the application layer. Okay, so we are going to learn in the last chapter, you're going to learn about the different application layer protocols. So वो तो लास्ट वाला तो आपको कैसा है कि उसमें 3-4 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. सो लेट स्टार्ट विद द फिफ्थ चैप्टर, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, इसको मैंने आप लोग को बताने के लिए ओपन रखा था. Okay, so starting with the new chapter, that is transport layer. It is also very very important, because when we talk about the packet delivery from one node to other node, or from source to the destination, when we talk about the packet delivery, then this transport layer also plays a very important role to reach your packet to the destination. Okay, how it is important, let us see. Okay, so first of all, your transport layer is located between your application layer, which is the last, which is the first layer from the top, which is the first layer, and your network layer, what we have learned in the previous session. Okay, so this is simply a location. Then it provides a process to process communication between two application layer.
देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा व्हाई वी हैव रिटन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. इफ यू रिमेंबर, then for data link layer what we have learned, for data link layer we have told that this is a node to node delivery. याद अगर होगा आपको तो for data link layer it was the node to node delivery. Okay. अगर बात करें नेटवर्क लेयर की, डेटा लिंक लेयर के बाद में कौन, नेटवर्क लेयर. So network layer was responsible for the delivery of packet from one computer to the another computer. Okay, to another computer. So between two computer it was responsible. तो बीच में जितने भी नोड आए, so बीच में एक नोड से दूसरे नोड तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की. उसके बाद में उस कंप्यूटर के अंदर पर्टिकुलर प्रोसेस से डेटा लेकर जाना और उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जाकर और वहाँ के पर्टिकुलर प्रोसेस को डेटा डिलीवर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है. स्टिल अगर नहीं समझे तो आप अगले 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 डायग्राम में पक्का समझेंगे. ठीक है, मैं आई विल गिव वन एग्जांपल. सो फ्रॉम दैट एग्जांपल यू विल इजीली अंडरस्टैंड. ठीक है, so what I was trying to you people can understand. So it provides a process to process communication. So just remember about this thing that your data link layer was responsible for the delivery of packet from one node to next node. Okay, from the next node, sorry, from one node to the next node. Your network layer was responsible for the delivery of packet from one computer to the next computer. Okay, sorry, from the source computer to the destination computer. Okay, but your transport layer is responsible for the delivery of packet from one process, from one process to another process. यानी कि the process of the source computer to the process of the destination computer. Okay, so इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे. ठीक है, आप लोग को इस चीज समझना चाहिए और आप लोग समझेंगे. आई एम श्योर अबाउट इट. A process is an application layer entity basically, and you know that because in operating system we have learned this thing that for each and every application, there is a process. There is a process which is created behind the scene. Okay, if you open the my computer, then the explorer नाम का एक छोटा सा process आपका पीछे बैकग्राउंड में काम करता है. If accidentally or forcefully if you delete or if you close that particular process, वहाँ से अगर उसको आपको एंड टास्क करेंगे, एंड टास्क में जाके जो भी करते हैं, इवन यू गो टू द आप अगर आप विंडोज में है या लिनक्स में है, इफ यू किल दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, देन यूर जो माई कंप्यूटर जो आपका ओपन था, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोजेस. ओके, बिकॉज इससे समझ में आया कि फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन विच इज वर्किंग ऑन आर डेस्कटॉप और लैपटॉप और ऑन डिवाइस और कंप्यूटर, so it must be having some sort of process which is working behind the scene. Okay, so basically a process is an application layer entity that is running program. अब हम लोग बोलते हैं ना a program in execution. process की definition क्या थी, हम लोग ने क्या पढ़े थे? process की definition है a program or application in a program in execution, application in आपका execution में है. ठीक है, that uses the services of the transport layer. तो basically process जो आपका है which is working on both the ends. Okay, स्पैम कॉल आ रहा है. ठीक है, मैं कट करता हूँ. ओके, so they are using the services of the transport layer basically. कैसे यूज करता है, कौन कौन सी सर्विसेज है, we'll come to know about all the services. Okay, so one at a local host and other at the remote host. भाई दो सोर्स डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं. चलो आते हैं. You can see the position of the transport layer, as you know, as we know that this is located between the application layer and the network layer. Okay, so we have application layer on the top and network layer as the third layer from the top. Okay, so application, transport and the network layer. Okay, अच्छा उसके बीच में और एक लेयर आती है, बट उसको हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है, बिकॉज वो जो प्रेजेंटेशन है, सो इसका काम खाली प्रेजेंटेशन की हद तक है. वट एवर डेटा दे आर गेटिंग, ओके, उस डेटा को क्या करना है, उसको अच्छे से सजाना है, संवारना है, उसको फॉर्मेट करना है, प्रॉपरली फॉर्मेटिंग में लाना है, एंड ऑल दैट, तो उसका भी काम है, वो करेगा. ओके, सो उसको हम लोग डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव द चैप्टर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन लेयर. सो वी हैव learn in a very short way, in a brief, in the first OSI reference model only. Okay,
just let us focus on this transport layer position where it is located between the application layer and the network layer. Okay, अगर देखा जाए तो, and it is providing some sort of services. You can see packetizing, addressing, connection control, reliability. तो ये चलो हम लोग एक एक करके सारी सर्विसेज देखते हैं. तो उसने लिखा है process to process delivery. You need to understand this concept very clearly. Okay, what is process to process delivery? Okay, because your आपका जो network layer है वो यही चीज provide करता है बॉस. ठीक है, process to process. आपका network layer जाना किस लिए जाता है? Cause of this process to process delivery की वजह से ही जाना जाता है. And your process to process delivery of the packet is possible with the help of one thing. Okay, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी पॉसिबल है एक चीज के थ्रू. ठीक है, एक एड्रेस, एक और एड्रेस लगता है. अब तक आपने कौन कौन से एड्रेसेस इंट्रोड्यूस कर चुके हैं? यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द मैक एड्रेस, दैट इज मशीन एड्रेस, और हार्डवेयर एड्रेस आपने इंट्रोड्यूस कर चुका है. आपने फिर लॉजिकल एड्रेसिंग भी लेकर आ गए. पिछले चैप्टर में नेटवर्क लेयर में आप लोग ने वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए कि चलो लॉजिकल एड्रेस भी यूज करेंगे. वी हैव वन मोर एड्रेस. ओके, in this particular layer we have one more address which is working. Okay, so वो address की वजह से उस particular वो चीज की वजह से ही process to process delivery possible है. Okay, देखते हैं उसको. थोड़ा सा कुछ चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट भी रखेंगे तो आगे चल के फिर जब पता चलती है तो अच्छा लगता है. So regarding process to process delivery, what is this process to process delivery? Your network layer is responsible for communication at the computer level, that is host to host, as it is just reminding, आपको remind करवा रहा है. As we know that in the data link layer it was responsible for the communication between the node to node. Your network layer was responsible for the communication at the computer level, that is host to host communication or computer to computer communication. Okay, but your network layer protocol can deliver the message only to the destination computer. तो आपको रिमाइंड इसके लिए आपको रिमाइंड इसके लिए करवा रहा है वो कि आपका जो मैसेज है, आपका जो नेटवर्क लेयर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक के मैसेज को ले जाने के लिए. यूर नेटवर्क लेयर जो हम लोग ने पिछला चैप्टर पढ़े उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, so your network layer was responsible because we have learned this thing. Okay, so your network layer was responsible for delivery of packet from one computer to the next computer. ठीक है, तो डेटा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया. अभी डोर पे खड़ा है आपका डेटा, बाहर खड़ा है, वेट कर रहा है, कोई उसको रिसीव करने अभी तक नहीं आया है. I'll give an example. चलो पहले इतना रीड करते हैं फिर एग्जांपल देता हूं आपको मैं. नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कैन डिलीवर द मैसेज ओनली टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. सो योर पैकेट will depart from this particular source computer and will reach to the destination computer only. Okay, destination computer तक पहुंच गया आपका डेटा, आपका मैसेज. However, this is an incomplete delivery. According to the ISO reference model, this is incomplete delivery. अभी तक सही हाथों में आपका मैसेज नहीं पहुंचा है. कैसे देखते हैं. The message still needs to be handed into the correct or to the correct process. Okay, because we have lot of process which are working on the destination computer. हमारे destination computer के पास बहुत सारे अलग अलग application रन हो रहे हैं. like my computer रन हो रहा है, गूगल क्रोम रन हो रहा है, मोजिला फायरफॉक्स रन हो रहा है, वायर शार्क रन हो रहा है, पैकेट ट्रेसर रन हो रहा है. सो पांच एप्लीकेशंस आर पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ ऑन माय डेस्टिनेशन कंप्यूटर. अब इन सब में से पिज्जा किसने ऑर्डर किया था? अब देता हूँ एग्जांपल. आपने पिज्जा ऑर्डर किया, आपके घर से पिज्जा ऑर्डर किया गया. ठीक है, या फिर आपने कुछ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया. ऑर्डर करने के बाद में अब वो जो वहाँ से जो भी आपका अमेजोन या उसकी जो जहाँ से हब है वहाँ से आपका पार्सल निकला है. अब पार्सल वो घर तक लाके बाहर छोड़कर जाएगा. सो दिस इज अ कंप्लीट डिलीवरी और इनकम्प्लीट डिलीवरी. तो बेसिकली दिस इज अ इनकम्प्लीट डिलीवरी and the higher authority will ask about it. Okay, why you have not delivered the packet to the correct hand. आपने सही हाथों में क्यों नहीं दिया, जिसको देना था उसको क्यों नहीं दिया. घर तक लाया उसने, नॉक करेगा. अच्छा, पैकेट आपका डेस्टिनेशन तक आ चुका है, पार्सल आपका डेस्टिनेशन तक आ चुका है, लेकिन अभी भी कंप्लीट डिलीवरी नहीं है. नॉक किया,
हाँ, कौन है अंसारी मुख्तार, कौन है? तो मेरे घर पे मेरे फादर, मदर, वाइफ, मेरे चिल्ड्रंस, ओके, सब लोग हैं। लेकिन उसमें से मुझे उसने किसको किया कॉल? उसके पास में कुछ तो होगा, उसके पास में कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से उसने डायरेक्ट मेरा नाम लिया। उसके पास में मेरा एड्रेस या फिर मेरी कुछ आइडेंटिटी रही होगी कि अंसारी मुख्तार कौन है। ठीक है, अंसारी मुख्तार घर से निकलेगा और वो पार्सल रिसीव करेगा। इन द सेम वे इन द सेम वे आपका जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के घर तक पहुंचा, एंड आफ्टर रीचिंग एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर इट विल नॉक द कंप्यूटर, और उसको बोलेगा भाई मुझे ये बंदे से मिलना है, मुझे ये प्रोसेस से मिलना है, या मुझे वायर शार्क ने बुलाया था, मुझे पैकेट ट्रेसर ने बुलाया था, मुझे गूगल क्रोम ने बुलाया था। तो जिसका बोलेगा वो पैकेट पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के प्रोसेस को डिलीवर होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ओके, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज द कंप्लीट डिलीवरी सिस्टम। ओके, सिर्फ घर के बाहर तक छोड़ के फेंक के चले जाना, दैट इज नॉट अ कंप्लीट डिलीवरी। कंप्लीट डिलीवरी कब होंगी? जब आप अपने पार्सल को, अपने पैकेट को, जब आपका सिस्टम आपके पैकेट को प्रॉपरली राइट प्रोसेस के पास में छोड़ के जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। दिस इज वेयर द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल वर्क्स। अच्छा, अब ये हमने बोले ना बाहर तक छोड़ के जाना इज नॉट अ कंप्लीट डिलीवरी, तो भाई सही हाथों में कौन देगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर delivering the packet to the correct process? Okay, who is responsible? Because last time तक जब हम लोगों ने पढ़े थे, so according to the network layer it was only responsible to deliver the packet outside the home। घर के बाहर छोड़ दिया, फेंक दिया, चला गया, काम हो गया। बोले थे आपने सोर्स से उठाने का है और डेस्टिनेशन पे देने का है, बस बाहर के बाहर काम है हमारा, अंदर तक देने का आपने बोला ही नहीं। तो नेटवर्क लेयर तो ऐसा बोल रहा था। ओके, जब नेटवर्क लेयर ऐसा बोल रहा था तो वी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म। सो वी हैव दी ट्रांसपोर्ट लेयर का आपका जो मैकेनिज्म काम करेगा वो इसके आगे काम करेगा। Your transport layer protocol is responsible for the delivery of message to the appropriate process। जैसे कि वो पार्सल मुझे उसने पर्टिकुलर नाम लेके बुलाया, मैं घर से बाहर निकला और मैंने वो पार्सल को रिसीव किया। ओके, तो उस तरीके से आपका जो पैकेट है वो पैकेट डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचेगा, एंड आफ्टर रीचिंग एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर इट विल आस्क फॉर द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? हाँ, मुझे गूगल क्रोम ने बुलाया था। ओके, फिर गूगल क्रोम आएगा, उस पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव करेगा। तो पैकेट कहाँ पहुंचा है? अभी पैकेट करेक्ट प्रोसेस के हाथों में पहुंचा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आल्सो। ओके, अगर जिसको नहीं समझा हो तो डायग्राम से भी समझेगा। This is the diagram which we are referring from last, from data link layer also. As you can see in the slide, from this computer, just mark my just follow my cursor. Okay, this is the source computer, I'll make it as this is my source computer, as you can see, and from source computer to to this router. Okay, from one hop to the next hop. Okay, from one node to the next node, your data link layer is responsible. So यहाँ से यहाँ जाने के लिए your data link layer will work for it. Okay, यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर अगेन आपका डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगेन डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है। तो नोड टू नोड डिलीवरी, एज यू कैन सी ओवर हियर, नोड टू नोड डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? योर डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। ओके, एंड होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, ये आपका होस्ट, आपका सोर्स होस्ट, एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन होस्ट। ओके, योर सोर्स एंड योर डेस्टिनेशन होस्ट से पॉसिबल है। हाँ, ये रहा आपका सोर्स और ये रहा आपका डेस्टिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन है? आपका होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए आपके पास में नेटवर्क लेयर है। ओके, एंड उसके बाद में लास्ट में प्रोसेस टू प्रोसेस, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर वी हैव अ इलाबरेटेड डायग्राम फॉर दिस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। जस्ट पहले इसमें समझो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तीनों लेयर्स का उसने कंपैरिजन कर दिया है कि हाउ योर नोड टू नोड इज वर्किंग, हाउ योर होस्ट टू होस्ट इज वर्किंग, and how your process to process is working. So basically in our computer system, lot of applications are running. Okay,
as we know that lot of applications are running, so maybe Google Chrome, Mozilla Firefox, Wireshark, Packet Tracer, My Computer. So a lot of things are working, a lot of applications are working, and each and every application must be having some sort of process. Okay, each and every application must be having some sort of process. Okay, so all the processes are we having. Okay, so if for example ये वाला जो process है वो है Google Chrome का, ठीक है, ये है Google Chrome का, CH लिखा हूँ मैंने तो समझ जाओ। तो ये मेरा Google Chrome का प्रोसेस है। तो आपने Google Chrome ओपन किए, ओपन करने के बाद में आपने URL में पुट किए, आपने URL में पुट किए www.mu.ac.in। ओके, तो ये एंटर करने के बाद में आपने एंटर हिट किए, तो यहाँ से रिक्वेस्ट आपकी जाएंगी। तो ये आपका प्रोसेस ने एक पैकेट बनाया, इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने एक पैकेट बनाया, ये पैकेट आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है, बिकॉज ये इसको आगे डिलीवर करेगा। कहाँ पहुँच गया? नेटवर्क लेयर के पास। आपका नेटवर्क लेयर यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड फॉर ईच नोड योर डेटा लिंक लेयर इज ऑल्सो वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नोड टू नोड के लिए आपके डेटा लिंक लेयर काम करेगा, फॉर होस्ट टू होस्ट आपका नेटवर्क लेयर काम करेगा। एंड आफ्टर उसके बाद में जब यहाँ पहुँच गया आपका डेटा, ये पैकेट जब यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पहुँचने के बाद में आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो पूछेगा कि भाई ये वाला पैकेट किसने भेजा था, मतलब किसको चाहिए। तो जो भी बेसिकली यहाँ से आ रहा है कि जा रहा है, तो यहाँ पर वो पूछेगा, तो वो बोलेगा गूगल क्रोम का सर्वर ये है, ठीक है भाई, ये मुझे डेटा चाहिए। ओके, तो गूगल क्रोम का जो सर्वर है इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा, और ये डेटा दे के वापस से रिप्लाई देगा, ठीक है। अगेन सारा प्रोसेस वही है रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पहुंचा, रिप्लाई आया हमको गूगल क्रोम से, और आने के बाद में यूर सोर्स कंप्यूटर विल टेक दैट पर्टिकुलर पैकेट एंड विल चेक, ओके, ये किसका है, ओके, ये तो गूगल क्रोम का है। तो दिस सो दैट पर्टिकुलर डेटा और दैट पर्टिकुलर पैकेट विल बी गिवन टू द correct process, okay, and the correct process, who is the correct process? The Google Chrome is the correct process, okay. So that packet will be delivered to the Google Chrome, and when that particular packet will be delivered to the Google Chrome, then we can see the page of the Google, okay. आपको सॉरी हम लोग ने mu.ac.in को वो किया था, सो यू विल गेट द पेज ऑफ MU यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी का पेज आपको दिखेगा, ठीक है। सो ये सारा जो प्रोसेस आपका इतनी यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है कि जैसे आपने गूगल पे टाइप मतलब कि गूगल टाइप करके या mu.ac.in करके आपने क्लिक किया, सो वो सर्वर जितना फास्ट रहेगा उसके हिसाब से आपको रिस्पांस भी उतना फटाफट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इज वर्किंग। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, प्लीज रिप्लाई मी। समझ रहा है आप लोग को? We have one more diagram from which we can understand this scenario in quite deeper way. Okay, so your network layer is mainly known for a process to process delivery. Okay, your data link layer is mainly known for the delivery of packet from one node to the next node, and your network layer is mainly known for the delivery of packet from one host to the next host. Okay, ये तीन चीज तो आप लोग को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। okay, जो कि यहाँ पर येलो कलर में यू कैन सी नोड टू नोड, होस्ट टू होस्ट एंड प्रोसेस टू प्रोसेस। ओके, तो ये तीन चीज आप लोग को एकदम याद रखना है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द थिंग्स विद मोर क्लैरिफिकेशन। थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। अब है एक्चुअल जो चीज मैं आप लोग को बताने वाला था, दैट इज द पोर्ट नंबर। ओके, बिकॉज एड्रेसिंग में अब तक हम लोग ने हाउ मेनी व्हाट आर द डिफरेंट एड्रेसेस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टिल नाउ। The first address we have introduced is the hardware address, okay, that is the machine address, okay, जिसको हम लोग MAC address भी बोलते हैं, okay, and आपको पता है MAC address कितने बिट का होता है? 48 बिट्स का होता है, okay, 48 बिट्स मतलब के टोटल कितने? 6 बाइट का होता है, and this MAC address is represented in terms of hexadecimal number, which each and every byte separated by a colon, okay. So ये उसका फॉर्मेटिंग होता है। so just उसके बारे में हम लोग इतना ही खाली so we have MAC address we have already introduced, okay, and after that we have logical addressing, we have logical address, we have IP address, okay,
तो जिसको हम लोग आईनेट एड्रेस भी बोलते हैं. सो दिस इज द आईपी एड्रेस. ओके, सो आईपी एड्रेस भी हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं अपने ट्रांसपोर्ट अपने नेटवर्क लेयर में. नाउ अब नंबर है पोर्ट नंबर्स का. अब बारी है पोर्ट नंबर की. ठीक है, वो जो हम लोग बोल रहे हैं ना, बिकॉज each and every process will be having some port number. Okay, each and every process will be having some port number. So with the help of this port number only, the packet or the things will be reached to the proper process. Okay, अब गया, जाने के बाद में बहुत सारे प्रोसेस है, कहाँ पे जाएगा वो देखेगा पोर्ट नंबर. अच्छा, ये पोर्ट नंबर है तो उसके हिसाब से प्रॉपरली द डेटा विल बी डिलीवर्ड. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द थिंग दैट इज एड्रेसिंग. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एड्रेसिंग यूजिंग पोर्ट नंबर होता है. एंड वी हैव वन मोर एड्रेस. ओके, दैट एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉजिकल एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर. दैट एड्रेस इज कॉल्ड द सॉकेट एड्रेस. ओके, we'll learn that thing after 1 or 2 slide. It should be clear by now that the IP address and the port number play different roles in selecting the final destination. As you know that your MAC address and your IP address plays an important role. Okay, in order to reach your packet to the destination. लेकिन आपको मैंने बोला ना, कहाँ तक पहुँचाएगा, घर के बाहर लाके पार्सल रख देगा और लाके फिर वो आगे नहीं पहुँचाएगा. सो आगे कैसे जाएगा हमारा पैकेट? यूजिंग पोर्ट नंबर. The destination IP address defines the host among different hosts in the world. Okay, तो आपका जो IP एड्रेस है वो सारे दुनिया में जितने भी होस्ट है, दुनिया में जितने भी लोगों के पास IP एड्रेस है, उन सब से हटके आपका IP एड्रेस है. तो आपका पर्टिकुलर ये जो आपका पैकेट है उस पर्टिकुलर IP एड्रेस में जाएगा. ठीक है, तो उस IP एड्रेस से गया और पहुंच गया. आफ्टर द होस्ट हैज बीन सेलेक्टेड, तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं. आपको फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स था. ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन था. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पर्टिकुलर आपके होस्ट है, मतलब आपके होस्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे होस्ट हैं. ठीक है, अब आपका जो सोर्स है यहाँ से उसको यहाँ पे जाना है, दैट इज टू द डेस्टिनेशन. इट हैज टू कम टू द डेस्टिनेशन. ठीक है, सो वो यहाँ नहीं जाएगा. ठीक है, उसको मालूम है जो मेरा IP एड्रेस जिसके बाद मुझे जाना है वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है. तो कौन है? वो ये है. Okay, so with the help of the IP address my packet will reach at proper destination तक पहुंचेगा. ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? हमारा नेटवर्क लेयर वाज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, घर के बाहर छोड़ने तक की जिम्मेदारी, घर के बाहर छोड़ने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नेटवर्क एड्रेस लेता है. ओके, उसके बाद में बारी आती है. आफ्टर द होस्ट हैज बीन सेलेक्टेड द पोर्ट नंबर डिफाइंस जस्ट इसको थोड़ा ध्यान से देखो. आफ्टर द होस्ट हैज बीन सेलेक्टेड, हमको समझ में आया कि ये वाला होस्ट है. ठीक है, ये आपका सोर्स था और यहाँ से आपका पैकेट निकल के कहाँ जाना था? यहाँ पे जाना था. ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है. ओके, सो यहाँ नहीं गया. योर होस्ट इज सेलेक्टेड एज दिस वन. आफ्टर द होस्ट हैज बीन सेलेक्टेड the port number defines one of the processes on this particular host. क्योंकि बिकॉज मैं आपको बताया कि इस पर्टिकुलर होस्ट पर, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर भी बहुत सारी एप्लीकेशन रन हो रही होंगी. ओके, मे बी गूगल क्रोम, मे बी मोजिला, पैकेट ट्रेसर, वाईशार्क. ओके, बहुत सारी एप्लीकेशन रन हो रही. तो उन सारी एप्लीकेशन के प्रोसेस भी पीछे रन हो रहे होंगे. ठीक है, तो आपका जो पैकेट पहुंचा है वो कौन से प्रोसेस को देना है, दैट इज defined and that will be decided by this port number. इसलिए पोर्ट नंबर एड्रेसिंग में इंपॉर्टेंट है एट ट्रांसपोर्ट लेयर. सो जस्ट नाउ अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर पोर्ट नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके, वी विल सी दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जांपल. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. ओके, so imagine we have sent the data. Okay, we have sent the data and the data has now reached to the destination computer. Okay, your data has reached to the destination computer. ये आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, यू कैन सी. और उसका जो IP एड्रेस है मैंने इसको भी मार्क किया हूँ. ठीक है, तो ये उसका IP एड्रेस है एंड ये मेरा कंप्यूटर है. अब इस मेरे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं. ठीक है, सो चलो ये मान लिया मैंने, ये मेरा गूगल क्रोम है. ठीक है, सो ये मेरा गूगल क्रोम है. ठीक है, ये मेरा मोजिला फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है. ठीक है, उसके बाद में ये वाला मेरा जो है ना वायर शार्क है. ठीक है, वायर शार्क WS करके मैं इसको लिख रहा हूँ. ओके, अब यहाँ से जो डेटा आया आपका, ये वायर शार्क ने मंगवाया था. ठीक है, और इसका पोर्ट नंबर है 13.
इसका पोर्ट नंबर है 13 पोर्ट नंबर। ओके, पोर्ट नंबर मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा पोर्ट नंबर क्या होता है। वो पोर्ट नंबर की जो रेंज है वो 0 से लेकर अराउंड 65,535 number of ports are available, and out of these port some ports are registered ports, some are उसमें बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं आप लोग, अब आप लोग को याद होगा, वेल डिफाइंड, डिफाइंड, नोन पोर्ट, अननोन पोर्ट्स, ऐसे भी कुछ नाम है उसका, देखने दो। तो वेल नोन पोर्ट्स है, रजिस्टर्ड पोर्ट्स है, डायनामिक पोर्ट्स है, तो वो हम लोग भी देखते हैं। तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें 0 से लेकर 1024 तक, सॉरी 0 से लेकर 1023 तक, मतलब के टोटल नंबर ऑफ स्टार्टिंग के 1024 जो पोर्ट्स होते हैं वो तो वेल नोन पोर्ट होते हैं, बाकी के अननोन पोर्ट्स होते हैं। तो वी कैन यूज एनी ऑफ द पोर्ट। ओके, तो ये सारे के सारे आपका 65,000 अराउंड 535 65535 नंबर ऑफ पोर्ट्स आर अवेलेबल। ओके, जो कि डिफाइन किया है आपके ICANN ने, इसका नाम है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ओके, इसने क्या किया, आपके पोर्ट नंबर्स को 3 रेंज में डिफाइन किया है। एक तो है वेल नोन पोर्ट, हम आपने जो प्रीवियस टॉपिक है उसको मैं रोक के आपको ये बता रहा हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा ज्ञान है। So the first is well-known port, which is ranging from 0 to 1023. That is total number of 102 port are there in well-known port, okay, and are assigned and controlled by the ICANN only. And these are the well-known port. Second is the registered port, starting from 1024 to 49,151 are not assigned and controlled by the ICANN. They are unknown port. इसको हम लोग unknown भी बोलते हैं, unknown port। वो आपके ऊपर वाले तो वेल नोन पोर्ट है, नीचे वाले अननोन पोर्ट्स है, इसको हम लोग रजिस्टर्ड पोर्ट्स भी बोलते हैं। बट इसको ICANN के साथ में मतलब कोऑर्डिनेशन करके रजिस्टर कर सकते हैं। देन थर्ड आपकी जो रेंज है वो है डायनामिक पोर्ट्स। जो थर्ड रेंज है दैट इज डायनामिक पोर्ट्स, एंड द पोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 49,152 टू 65,535, इतने नंबर ऑफ पोर्ट्स आपके डायनामिक में आते हैं। दे आर नीदर कंट्रोल नॉर रजिस्टर्ड। ओके, दे कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पररी और अ प्राइवेट पोर्ट नंबर्स। सो ये बेसिकली आ गया टॉपिक, तो मैंने बता दिया। सो दीज आर नंबर ऑफ पोर्ट्स विच आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज और रेंज, वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट एंड डायनामिक पोर्ट। ओके, तो ये पोर्ट है। अब आते हैं वापस यहाँ पर। ओके, सो योर पैकेट हैज रीच टू द कंप्यूटर। ये आपका पूरा कंप्यूटर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, पूरा ये पूरा आपको ये दिख रहा है, आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है। ओके, अब इस कंप्यूटर के अंदर आपका जो होस्ट है, इट विल रिसीव द पैकेट। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क लेयर योर पैकेट विल रीच एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर ओनली। दिस इज द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ठीक है, डेस्टिनेशन लिख के नहीं आता, इससे प्रॉपर माउस से लिख के नहीं आता है। This is the destination computer, and at the destination computer your packet will reach. Okay, after reaching at the destination computer, it has to be handed so आफ्टर रीचिंग दिस पैकेट एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ये तो देखो, ये जो एड्रेस हम लोग ने यूज किया, ये आपका आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस यूज किया तो आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच गए। ओके, अब उसके बाद में इस कंप्यूटर के अंदर एज यू कैन सी, ये वाले कंप्यूटर के अंदर वी हैव लॉट ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर वर्किंग, वी हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन, वी हैव नंबर ऑफ एप्लीकेशन व्हिच आर एग्जीक्यूटिंग राइट नाउ, and each and every application has number of processes which are working behind the scene, which is सब background में चलते रहता है। okay, so ये Google Chrome है, ये Mozilla Firefox है, ये Wireshark है। okay, when your packet will reach at the destination computer, your destination computer will okay, ये पैकेट तो मेरे लिए है, लेकिन अब मेरे पास में तो बहुत सारे अलग अलग है। ठीक है, मेरे पास में अलग अलग एप्लीकेशन के प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तो ये किसके लिए है? सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस पोर्ट नंबर, दैट इज पोर्ट नंबर 13। तो ये जो पैकेट है वो किसको हैंड ओवर करना है? ये उस प्रोसेस को हैंड ओवर करना है जिसका पोर्ट नंबर 13 है, जो कि पोर्ट नंबर 13 पर काम कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, सो इट विल सेलेक्ट द पोर्ट नंबर दैट मतलब योर डेस्टिनेशन कंप्यूटर विल चेक फॉर द पोर्ट नंबर एंड विल डिलीवर द पैकेट
will deliver the packet to the correct process, will deliver the packet to the correct process. अगर उसमें पोर्ट नंबर कुछ और होता, फॉर एग्जांपल ये किसी ये है 14 आपका, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर 14 होता तो ये इसको डिलीवर नहीं करता, ये इसको डिलीवर करता. ओके, सो यू नो दिस इज द रीजन, यू नो why this is important. Okay, and ये जो आपका पैकेट है, it will reach to the destination. It will reach to the destination, and after reaching the destination, it will take the help of the port number, and with the help of the port number, it will deliver the packet to the correct process. Okay, so this is the situation of the port number, why it is very important. Okay, and one more thing, the combination of this thing, that is the logical address. The logical address, you can see the logical address and the port number. We'll see in the next slide. Just let me show you that thing also. ये आईना रेंजेस है, as you can see, यहाँ सारे के सारे पोर्ट नंबर्स है, तो मैंने डायग्राम डाल दिया था ऐसे. सॉकेट एड्रेस, दिस सॉकेट एड्रेस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा है कुछ नहीं सॉकेट एड्रेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस and the port number is called a socket address. That's all. So kabhi kabhi viva mein question पूछ लेते हैं, what is socket address? So socket address is not alone. Okay, socket address is the combination of IP address and the port number. The same thing I told you over here also. तो ये जो आपका पूरा complete वाला है, तो ये आपका जो pack है, this pack is called the socket address. Okay, and with the help of socket address only, your packet can reach at proper destination and at proper process also. Okay, I hope you are understanding what I want to show you. So ये रहा आपका आया ये तो socket address. Transport layer protocol in the TCP suite, that is आपका जो सारी layers है, that is called the TCP IP suite, needs both the IP address and the port number. Why you need the IP address? So that you can reach at the proper destination computer or destination host. Okay, with the help of IP address you can reach to the proper host. Okay, and with the help of the port number you can reach to the proper process. Okay, so that you can deliver the packet, you can deliver the message to the correct hand. Okay, आप सही हाथों में उस particular packet को, message को, information को सही process के पास दे सकते हैं. And this is the right and we can say complete delivery of packet or data or message or information, whatever. Okay. As you can see the diagram, this is the socket address, we have IP address and we have port number. We will combine and we will, when we put both the things at one place, so that becomes the socket address. Okay, I hope we can complete this one also. यहाँ तक पहले हम लोग देख लेते हैं. I hope you have understood the thing. What is the responsibility of the transport layer, what is the responsibility of the transport layer, and what is process to process delivery. This process to process delivery कभी कभार आपको वाइवा में भी पूछते हैं, what you mean by the process to process delivery, because it contains the process introduction of processes also. Okay, so इसके लिए process to process delivery को कभी कभी वाइवा में क्वेश्चन में भी पूछते हैं. Okay, so I hope you have understood these concepts. चलो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा पहले वो देखते हैं. First of all, we have introduced the transport layer. Okay, it is located between ऊपर वाला नीचे वाला layer. Okay, then and we also know that the delivery of packet from one host to the next host, destination host, is not the Am I audible? Yes, okay. Yes, now Thank you you. are. Now I'm audible because power नहीं actually अचानक लाइट चली गई, इसके लिए
मैं डिस्कनेक्ट हुआ था. Okay, so we have only 2 minutes, so I was just revising what we have done so that we can complete the things. कहाँ पर है? तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे देखने दो. So I hope people are getting the things what we have done till now. Okay. So we have understood, we have taken the introduction part, then this is the position, then we have gone through the process to process delivery, what is process to process delivery, and in the delivery of packet from one process to another process requires the port number also. Okay, with the help of this diagram you can easily explain what is process to process delivery. With the help of this diagram and with the help of this diagram you can easily understand, you can easily make others understand that what is process delivery. Okay, this is the diagram from process to delivery. फिर से थोड़ा समझाओ. Okay, process to process delivery फिर से समझाओ. ओके चलो ठीक है. एक सेकेंड. मैं लेक्चर के बाद में आऊँगा. बैठो आ रहा हूँ. Okay, so process to process delivery. Okay, as I've given one example to you that if you have ordered something from Amazon or from the Flipkart, then that guy will come to your home, okay, at your doorstep, and will give it to you. It will not give that particular parcel to anyone. Okay, ऐसा नहीं, बल्कि वो तो कंफर्म करेगा ना, पहले फोन करेगा और आपको पूछेगा कि हु इज दिस गाय, अंसारी मुख्तार कौन है, ठीक है, उसको देगा. ठीक है, अब जाहिर बात है जिसकी और उसकी जो है तो डिजिटल सिग्नेचर भी लेते हैं, वॉट एवर इज द प्रोसेस. सो उस प्रोसेस के अंदर जैसे वो आकर पर्टिकुलर आदमी को पूछेगा, वो आएगा, वो पार्सल लेगा और उसी को वो डिलीवरी देगा. ओके, तो बेसिकली दिस इज द आइडियल प्रोसीजर. वो तो होता है कि चलो फोन पे बोल दिया कि भाई मैं हाँ घर पे मैं नहीं हूँ, आप दे दो, मैं बाद में ले लूंगा, आप मेरे घर पे दे दो. हाँ, तो वो भी एक उन लोग का वे है, बट दिस इज द आइडियल कंडीशन. सो इन द सेम वे when you send the data, okay, when data is sent from the source computer to the destination computer, so your network layer जो हम लोग ने पिछला चैप्टर देखा है, your network layer is responsible for the delivery of packet from one computer to the next computer. अब वो घर के बाहर ले जाके छोड़ने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाली आपके नेटवर्क लेयर की. घर के अंदर किसको देना है ये नहीं बताता है आपका नेटवर्क लेयर. ठीक है, अच्छा ये नहीं बताएगा तो फिर ये हमको कौन बताएगा? ये बताने के लिए हमारे पास में ट्रांसपोर्ट लेयर है. Okay, my transport layer having few set of addresses. Okay, one set of address, that address is nothing but the logical address with port number. Okay, combinedly we call it as the socket address. So with the help of socket address, and your socket address contain the logical address first, that is your IP address. Okay, तो आपका पैकेट पहुंचा, IP एड्रेस किधर है घूमते घूमते पहुंचा, एंड इट विल रीच एट द डोर स्टेप. ओके, आपके कंप्यूटर तक पहुंच गया अभी. अब कंप्यूटर के अंदर आपको हम लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन व्हिच आर एग्जीक्यूटिंग इन माय कंप्यूटर सिस्टम will be having one process, exactly one process, at least one process which is working behind the scene. उन हर एप्लीकेशन के साथ में एक प्रोसेस होगा जो कि पीछे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट इट सेज, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. ओके, एक ऐसा प्रोसेस को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. तो एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, तो उसको आप लोग बोलते हैं बेसिकली प्रोसेस. तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि यू हैव अ गूगल क्रोम, यू हैव अ मोजिला फायरफॉक्स, यू हैव अ वायरशार्क, यू हैव अ पैकेट ट्रेसर, यू हैव माई कंप्यूटर. ओके, ये जो सारे एप्लीकेशन आपको सामने दिख रहे हैं, तो इनका एक एक प्रोसेस तो पीछे बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा. ओके, जब ये पीछे एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो फिर आपको क्या करना है,
ये पीछे जो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली उनमें से किसी एक प्रोसेस को पहुंचना चाहिए. इफ योर वायर शार्क इफ योर गूगल क्रोम हैज आस्क्ड फॉर द डेटा, देन आपके कंप्यूटर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा है, ठीक है. बट कंप्यूटर के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अब ये 5 प्रोसेस आपके काम कर रहे हैं. इन पांचों में से ये डेटा किस प्रोसेस को हैंड ओवर करना है? ये डेटा इन 5 प्रोसेस में से किस प्रोसेस को हैंड ओवर करना है, ये किसी ने बताया नहीं. ये कौन बताएगा? ये आपको आपका ट्रांसपोर्ट लेयर बताएगा. और ट्रांसपोर्ट लेयर किसके थ्रू बताएगा? यूजिंग द पोर्ट नंबर, और यूजिंग वी कैन से कलेक्टिवली वी कैन से सॉकेट एड्रेस. योर सॉकेट एड्रेस के अंदर कंटेन योर लॉजिकल एड्रेस, दैट इज योर आईपी एड्रेस. तो आईपी एड्रेस ने वहां तक पहुंचा दिया आपको. अब उसके बाद में इन 5 प्रोसेस में से किसको देना है, आगे पोर्ट नंबर बताएगा. सो पोर्ट नंबर क्या करेगा? यूजिंग पोर्ट नंबर दैट पर्टिकुलर पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट प्रोसेस. ओके, जब वो करेक्ट प्रोसेस को हम लोग दे देंगे, तब ये जाकर आपकी कंप्लीट डिलीवरी कहलाएंगी. ओके, so this is the process, one process to the next process. Okay, so one process to process आपकी डिलीवरी होती है. Okay, तो इन द सेम वे ये डायग्राम हम लोग ने समझा, सॉकेट एड्रेस हुआ, और ये हम लोग इनकैप्सुलेशन बाद में देखते हैं. द टाइम इज अप नाउ. ओके, सो वी हैव इनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन, जो कि हम लोग जानते हैं पहले से, वो देखेंगे. दिस इज द डायग्राम. ओके, एंड मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, एंड देन उसका डायग्राम, ये भी आप लोग जानते हैं, बट स्टिल एक बार करते हैं. देन वी हैव अ फ्लो कंट्रोल, उसका डायग्राम, पुशिंग एंड पुलिंग फ्रॉम द सेंडर एंड द रिसीवर साइड. एंड देन फ्लो एरर कंट्रोल. एरर कंट्रोल के अंदर आपको पता है, एरर कंट्रोल में सीक्वेंसिंग एंड एक्नॉलेजमेंट, ये 2 कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. देन वी हैव अ कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. ओके, बिकॉज आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो 2 मेन पर्सन काम करते हैं, 2 मेन हेड है, वो कौन है? टीसीपी, यूडीपी. आपका जो कनेक्शन लेस है वो यूडीपी प्रोटोकॉल है, और कनेक्शन ओरिएंटेड आपका टीसीपी है. तो मैं बोल रहा ना, अभी ये सब ग्राउंड आपका जो हो गया रेडी. अब इसके बाद में जो मेन जो बातें होंगी वो कनेक्शन लेस सर्विस के बारे में, देन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के बारे में, उनके डायग्राम्स वगैरह ऑल दैट हम लोग देखेंगे. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. ओके, एंड द रिमेनिंग. ओके, आई होप आप लोग